Okay, Assalamu alaikum everyone. I can see quite a few students in the class. I hope you can all hear me. Okay, I can see students जिन जो अपने IDs के साथ login नहीं हुए हैं, आप लोग please अपने IDs के साथ names के आगे आपके IDs mentioned होने चाहिए and whatever the number is. So Muhammad Usman, Tasmia, Bibi, uh, and some more people, they need to join in with their IDs. Tayyaba Ibrahim, please make sure आप लोग अपने IDs के साथ join करो, ठीक है? Muhammad Usman also. Yes. So, guys, let's begin with the class. So, my name is Mabra Ahmad, and I will be taking your SAT English training sessions, and I will be conducting NOP session for you for SAT English. Or आज हमारी first class है. This is section D. Or it's very nice to come across people who are here and are going to be participating in a very interactive session. I have been associated with the education sector for the past 6 years. और बहुत सारे variety of age groups को I have been teaching, and I've been coming across students from various backgrounds and age groups. So let's find out कि SAT basically है क्या, SAT English में कौन कौन से components हैं, कैसा structure है, कैसे questions हैं, हम ये discuss करेंगे. थोड़े से rules हम लोगों को अपने mind में रखने हैं for SAT English की ये online interaction classes के लिए, क्योंकि हम लोग जाहिर है कि question answer sessions भी होंगे, आप लोग discussions भी करोगे. Please make sure कि जब आप लोग join करो, आतिफा server, you need to join in with your ID, otherwise आपकी attendance mark नहीं होगी. Okay? Please make sure कि आप लोग अपने IDs के साथ join in करो, वरना आप लोग की attendance नहीं mark होगी. अच्छा. So, guys, coming back to what I was saying, कि थोड़े से रूल्स फॉलो करने होंगे फॉर दीज ऑनलाइन क्लासेस, जो कि आपको पता ही है कि आपको अपने माइक्स म्यूट रखने होंगे. जब कुछ पूछना है आप हैंड रेस कर सकते हो, और फिर आप बेशक अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो वंस आई से योर नेम. और या फिर मैं आपका अगर नाम लूं, आप मुझसे कहूं कि आप क्वेश्चन आंसर करो या आप कोई चीज डिस्कस करो, तो आप कर सकते हो माइक अनम्यूट करके. अदरवाइज थ्रू आउट दिस क्लास, throughout all of the classes, please make sure कि आपके माइक्स म्यूट पे रहें, so that background noise ना हो और सबको समझने में आसानी हो. ठीक है? So, एक्सक्यूज मी मैम. जी आतिफा. मैम अब मेरी अटेंडेंस होगी है? जी जी, अब आपका आईडी नजर आ रहा है. मोहम्मद बिलाल, आई कैन नॉट सी यू साइन इन विद योर आईडी. प्लीज डू दैट. And let's begin, guys. I'm going to share my screen and we are going to start off with the SAT English class. ठीक है? G. So, okay. So now we can see, okay, there are some people who are, right. So we are going to start off with the classes and we are going to see कि SAT English basically है किस बारे में. मगर उससे भी पहले we need to have a little overview of the participants in this class कि कौन कौन कहाँ कहाँ से आया हुआ है. अच्छा, आप लोग अपने chat box में please मुझे type करके बता दो कि how many of you are from Punjab. You can just say me or your name or whatever. So Punjab से यहाँ कितने बच्चे हैं, कितने सारे students हैं? Okay, so we have Asifa, we have Javeria, we have Abu Huraira, and Hafiz Muhammad, Shazib, Atifa, Aisha, Muhammad Abdullah, Noman, Tayyaba, Danial, Hasnain, and Tasmia. Okay, so lots of people are from Punjab. अच्छा, सिंध से यहाँ पर कौन कौन है? Okay, so since से नहीं है कोई भी. Okay, what about, oh, okay, we have another one from Punjab, Bilal. अच्छा, what about KPK? कोई KPK से है यहाँ पे? Okay, so we have Usman Abdullah from KPK. Very nice. Good to see you. Mohammed Shoaib also. अच्छा, और बलोचिस्तान से कौन है? Okay, we have some Khansa Rabbani from Punjab also, Mustafa Hassan, and okay, so we have some people from Balochistan also. So we have a variety of students, and so good to see you all. Inshallah, we will have a very nice
सेशन टुडे, और इसके बाद जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स क्वेरीज होंगी वो भी हम साथ साथ एड्रेस करेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि आप लोग अगर कंसंट्रेट करोगे तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल तो होगा ही, लेकिन आप लोगों ने बस रूल्स को थोड़ा सा ख्याल में रखना है कि मुझे आप लोगों की तरफ से नॉइज नहीं आनी चाहिए, वरना बाकी सबको समझने में प्रॉब्लम होगा और मेरी क्लास भी डेफिनेटली इंटरप्ट होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। यू नो माय नेम इज मावरा, मैं आप लोगों की सैट इंग्लिश ट्रेनर हूँ। तो अब हम लोग अपनी क्लास को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। So guys, SAT English is all about yes जी। So SAT English verbal section जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा SAT का ओवरव्यू कर लेते हैं so that हमें आइडिया हो जाए हमारा आज का एजेंडा क्या है। First, we will be discussing what SAT. Yes, Atifa, I will be taking your SAT English classes for the verbal section. ठीक है? Introduction to the SAT. Then we will be discussing the verbal section of SAT, the English section which is, and then we will be discussing the reading section जो कि SAT English का ही एक बहुत important component है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 10 tips to ace SAT reading, बहुत important tips हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। फिर हम थोड़े से एग्जाम्पल्स फ्रॉम द बुक भी देख लेंगे और उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एंड देन आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चन साइड बाय साइड। तो इस बारे में हमारी डिस्कशन होगी और जाहिर है कि आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इंटरैक्ट करो। यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अ क्वेश्चन, इफ यू वांट टू से समथिंग, ठीक है। सो SAT क्या है बेसिकली? SAT इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ऑब्वियसली आप लोगों को टेस्ट किया जाता है बहुत सारी चीजों पे, आप किस तरह अपना टाइम मैनेज करते हो। टाइम तो बहुत इसमें रिजिडली फिक्स्ड होता है और चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये इट्स बेसिकली गोइंग टू टेस्ट योर एबिलिटीज, योर स्किल्स, कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, अपना पैनिक लेवल्स को किस तरह मैनेज करते हो। तो स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि आपको आइडिया हो कि SAT को टैकल कैसे करना है, SAT के क्वेश्चंस को। एंड SAT इंग्लिश को स्पेसिफिकली मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूंगी, तो उस कंपोनेंट को टैकल करने के लिए हम टिप्स और स्ट्रैटेजीज को भी देखेंगे, ठीक है। सो इट्स बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज। आप इंटरमीडिएट या अपने A लेवल्स के बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए SAT जो है उसको ऑप्ट करते हो, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये एक रिक्वायरमेंट है। बेसिकली अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में SAT जो है इट्स अ रिक्वायरमेंट, लम्स में इट इज अ रिक्वायरमेंट, और जो है इससे आप बहुत सारी चीजें वैसे भी ओवरऑल भी इट इज quite engaging and it's very knowledgeable for you in your life as a student in a university also, ठीक है जी। मोहम्मद बिलाल, you have raised your hands. What would you like to say? Okay, so if you have something to say, you can also type in the chat box. 3 hours long will be your SAT test duration. आपकी 3 hours long test होता है, 50 minutes separately essay के लिए होते हैं। अब essay जो है वो optional होता है वैसे तो, लेकिन लम्स के केस में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के केस में essay optional नहीं है, और मैं तो हाईली रेकमेंड करूंगी कि ऐसे जरूर किया जाए। इट्स चैलेंजिंग, लेकिन आप बाय द टाइम जब आप ऐसे सेक्शन पे पहुंचते हो तो आपको काफी ज्यादा आइडिया हो जाता है। तो इसीलिए SAT ऐसे स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लम्स एंड सम मोर यूनिवर्सिटीज इट इज कंपल्सरी, इट इज रिक्वायर्ड। सो कुछ यूनिवर्सिटीज में ऑप्शनल होता है, ठीक है। अब हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं SAT में। एक तो रीडिंग सेक्शन होता है, उसमें 52 क्वेश्चंस होते हैं। Then we have the writing and language section which has 44 questions, and essay writing section में हमारे पास एक question होगा related to the passage जो हम read करेंगे। फिर हमारे पास math section है जिसमें 58 questions हैं। Test scores are between 400 to 1600 and minimum जो है वो 400 होता है। बहुत बुरा भी अगर आपका टेस्ट हो तो 400 तो आ ही जाता है। No negative marking, no negative marking for wrong answers. Okay, now the scoring and structure of those components. So हमारे पास sections हैं जी, English, Math और Essay. English में we have 65 minutes for the reading section, 35 minutes for the writing and language section.
And for the questions, we have reading case 52 questions, यानी 65 minutes और 52 questions होते हैं MCQ based. Writing and language section में हमारे पास 44 questions होते हैं in 35 minutes जो हमें complete करने हैं. Score range is between 200 to 800, minimum भी it's 200. अच्छा, math में we have 25 minutes, no calculator section, and 55 minutes for the calculator section, right? And questions for no calculator section, they are 20, and questions for the calculator section, they are 38. इसका भी score range जो है it's between 200 to 800. Okay, Ahmed Hussain, your question is for the math, about the math section. So math के लिए it's difficult, but of course practice करनी पड़ेगी. I'm sure math teacher भी जो आपके हैं वो आपको बहुत अच्छी tips देंगे, तो आप उनको भी जरा देख लेना, उनसे भी पूछना. लेकिन it's honestly speaking सब कुछ practice से ही आता है, चाहे वो कोई नई चीज हो, चाहे वो चीज हो जो आपने बहुत दफा की हुई हो. So practice is the key. तो शुरू में मुश्किल लगेगा, पर जितना ज्यादा आप टेस्ट पेपर्स को प्रैक्टिस कर लोगे, सैंपल पेपर्स को, उतना ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा. ठीक है. essay section में there are 50 minutes and you have one question which is passage based, और score जो है वो 3 to 12 के between में होता है. ठीक है. moving on, English on the SAT. तो English section में हमारे पास है जी number of questions. Reading section में 52, like I already told you. Time है 65 minutes, so scoring जो होती है वो 10 to 40 के दरमियान में, that's the raw overall score, the general score. फिर writing section में we have 44 questions, 35 minutes होते हैं इसके लिए, और 10 to 40 के दरमियान में इसका score होता है. Then for the essay portion we have 200 to 800, that's the score. और 50 मिनट्स होते हैं. क्वेश्चन तो एक ही होता है हमारा, जो कि हमने पैसेज को रीड करके उसका एनालिसिस करना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, उसके बारे में अपनी ओपिनियन लिखनी होती है. सो दैट्स द एसे सेक्शन, एंड द स्कोर्स आर बिटवीन, दे रेंज बिटवीन 3 to 12. ठीक है. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग सेक्शन. मेरे हिसाब से सैट का सबसे चैलेंजिंग सेक्शन जो है वो रीडिंग सेक्शन ही है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग परेशान हो जाओ. रीडिंग सेक्शन चैलेंजिंग है, इसका ये मतलब है कि वंस यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन द रीडिंग सेक्शन, अदर टू सेक्शंस ऑटोमेटिकली बिकम ईजियर. सैट इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन की इंपॉर्टेंस जो है, राइटिंग सेक्शन और ऐसे सेक्शन सबकी इंपॉर्टेंस एक जैसी है, लेकिन रीडिंग का जो वर्ड है वो आपने अपने माइंड में रख लेना है व्हेन वी टॉक अबाउट सैट इंग्लिश स्पेसिफिकली, बिकॉज हर सेक्शन में बीट रीडिंग, बीट राइटिंग, बीट ऐसे रीडिंग इन्वॉल्व है. तो रीडिंग तो आप लोगों को अपनी बहुत ज्यादा अच्छी कर लेनी चाहिए, प्रैक्टिस करके पैसेजेस को सैम्पल पेपर से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही लैंग्वेज का, वोकैबुलरी का, सेंटेंस स्ट्रक्चर का आइडिया होता जाएगा. जितना ज्यादा आप लोग इन दिनों में अपनी प्रिपरेशन से पहले रीडिंग कर सकते हो वो भी बहुत हाईली रिकमेंडेड है, बिकॉज रीडिंग इज द की. एंड इफ यू बिकम अ रीडर हु इज एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड इज एबल टू गो, मतलब वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है जब आप रीडिंग की थोड़ी आप फ्लो में आ जाते हो. और ये तो नेचुरली होता है कि जब आप बहुत ज्यादा रीडिंग करना स्टार्ट हो जाते हो तो आपको हर पैसेज को रीड करने में आसानी भी होती है और मजा भी आता है. ठीक है. So let's begin with the reading section overview. The time for reading section is 65 minutes, जिसमें 52 passage based MCQs होते हैं, A, B, C, D options होती हैं. Passages जो हैं उनकी 4 single passages होते हैं हमारे पास. ठीक है. And 1 set of paired passages होता है, यानी कि कुछ passages ऐसे होते हैं जो 2 होते हैं बट उनका इंफॉर्मेशन जो होती है इट्स लिंक्ड अप. ठीक है. तो वो पैसेजेस हम उनको पेयर्ड पैसेजेस कहते हैं. तो उन 2 को और इन 4 को मिला के टोटल पैसेजेस 6 बनते हैं. तो उस पेयर्ड पैसेज को हम एज 1 ही काउंट करते हैं, बिकॉज वो उसका जो कंटेंट होता है वो एक दूसरे का यूजुअली रिलेटेड होता है. Then the passage length, it's between 500 to 750 words per passage or per set, so that's the general length. ठीक है. अच्छा, अब रीडिंग पैसेजेस जो है तो उनका कंटेंट जो है वो किस तरह का होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखना कि रीडिंग पैसेजेस का जो कंटेंट है वो किस तरह का होता है. Unmistakable focus on careful reading of appropriately difficult passages. पैसेजेस डिफिकल्ट होंगे रीडिंग सेक्शन में और डिफरेंट डिसिप्लिन से होंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज पे बेस्ड होते हैं
और फोकस आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप फोकस करो। जब आप पैसेज रीड करो तो कंप्लीटली अटेंटिव हो, विच इज व्हाई आई हाईली रेकमेंड कि अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि रीडिंग प्रैक्टिस से आपको एक जो है माइंड जो होता है वो ट्रेन हो जाता है कि जब भी आप रीड करने के लिए कुछ भी पढ़ोगे आपको उसको ज्यादा आसानी से जल्दी समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से इतनी रीडिंग कर रखी होगी तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है, ब्रेन गेट्स यूज्ड टू इट. So next point is wide array of subject areas. You could have passages related to biology. You could, sorry, not biology. You could have passages related to science. You could have passages related to history, humanities, literature. किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, यूएस हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं. Then the passages are based on authentic texts. जी, जो इंफॉर्मेशन होती है वो फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, इट्स ऑल फैक्चुअल, और ट्रू इंफॉर्मेशन होती है. अ रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, बिल्कुल चैलेंजेस होते हैं क्वेश्चंस में, पैसेजेस में, उनको समझने में. हर चीज आपके सामने पैसेज में मेंशन नहीं होगी, मगर क्वेश्चन जो है वो उससे रिलेटेड जरूर आ सकता है. तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि पैसेज को रीड करते हुए आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ भी जाना एट टाइम्स पड़ सकता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज कभी कभी हमसे इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन मांगी जा रही होती है जो हमें पैसेज को रीड करके उसको अंडरस्टैंड करके ही समझ में आती है, ठीक है. ओके, इंफॉर्मेशनल ग्राफिक्स फॉर इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल हमारे पास पैसेजेस में इंफॉर्मेशनल ग्राफिक्स होते हैं. वी हैव पाई चार्ट्स, वी हैव ग्राफ्स, तो वी हैव बार ग्राफ्स, तो हमें उनको इंटरप्रेट करना पड़ सकता है. सब पैसेजेस में नहीं होंगे, किसी एक दो पैसेजेस में ये होते हैं, और फिर इसको भी हमें अंडरस्टैंड करके इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. नेक्स्ट वी हैव टेक्सचुअल एविडेंस. बिल्कुल टेक्सचुअल एविडेंस जो है इसका मतलब ये है कि हम हर आंसर को जो हम अपने क्वेश्चन के लिए चूज करेंगे उसका एविडेंस हमारे पास पैसेज में मौजूद होता है. उस चीज को माइंड में रखते हुए कि हर आंसर की जस्टिफिकेशन है, ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है. ओके, next we have extended prose passages, meanings of words, phrases, tone and impact. Again very important कि questions जो है वो हमारे पास किसी चीज से भी related हो सकते हैं. उसमें word meanings भी पूछे जा सकते हैं, उसमें phrases, tone और impact कुछ भी पूछा जा सकता है. questions की variety होती है, उनकी nature पे depend करता है कि वो हमसे किस तरह का आंसर डिमांड कर रहा है, ठीक है. So this is about the passages. And then let's look at the content, ठीक है. अब content में we have US and world literature. It has one passage based on it and then 10 questions for it. और इसकी percentage जो होती है वो 20% होती है of the test, और इस पे based 10 questions आपको आ सकते हैं और एक passage. फिर हिस्ट्री और सोशल स्टडीज में से किसी एक पे भी पैसेज हो सकता है, 2 पैसेजेस और 1 पैसेज इन 1 पेयर्ड पैसेज, 10 to 11 क्वेश्चंस ईच, 40% जो है इसकी परसेंटेज होती है, ठीक है. साइंस जो है उस पे 2 पैसेजेस बेस्ड हो सकते हैं, या फिर कोई पेयर्ड पैसेजेस भी आ सकता है और एक पैसेज अलग से हो सकता है. इसके भी 10 to 11 क्वेश्चंस ईच होते हैं और 40% इसकी वेटेज होती है. 10 टिप्स टू एस सैट रीडिंग. अब ये जो टिप्स मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, दीज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोगों को जब आप इन क्वेश्चंस को आगे करोगे, सैट रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस को, और आप इन टिप्स को अप्लाई करोगे, आपको रियलाइज होगा कि किस हद तक आपके लिए ये चीजें हेल्पफुल है. छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप अगर प्रैक्टिस करोगे, इनको आप अपने माइंड में रखोगे, तो इट वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू टू टैकल द क्वेश्चंस इन द सैट रीडिंग सेक्शन. तो ऑब्वियसली टिप्स और स्ट्रैटेजीज, एक तो टाइम सेविंग होती हैं क्योंकि सैट रिजिडली टाइम्ड होता है, इसमें बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम होता है हर क्वेश्चन के लिए. कुछ क्वेश्चंस के लिए कुछ सेकंड्स, कुछ क्वेश्चंस के लिए कुछ टाइम होता है. तो उसको आपको बहुत ज्यादा बैलेंस रखने के लिए जरूरी है कि आप कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजीज जो है यू टेक देम डाउन एंड यू रिमेंबर देम, राइट. So we will be discussing these in the next few minutes. So let's start with the first tip. Read pretext first. Okay, so pretext जो होता है वो हमारे पास हर पैसेज से पहले एक थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है 3 to 4 लाइंस का या 2 to 3 लाइंस का, जिसमें हमें पैसेज के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि पैसेज किस बारे में होगा, उसके बारे में क्या, हु हैज रिटन द पैसेज,
या टॉपिक क्या है, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है पैसेज के बारे में कि वो किस सब्जेक्ट एरिया पे बेस्ड है, साइंस, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ये सारी चीजें, ठीक है. सो आई वुड वांट आसिफा रियाज टू रीड द प्री टेक्स्ट इन द पैसेज. ये जो आपके सामने है, आप आसिफा, कैन यू प्लीज रीड इट, अनम्यूट योर माइक and please read it for us. This passage is adapted from Alan Ehrenhalt's The Great Inversion and the Future of the American City, 2013 by Vintage. Ehrenhalt is an urbanologist, a scholar of cities and their development. Demographic inversion is a phenomenon that describes the rearrangement of living patterns throughout a metropolitan area. Thank you, Asifa. So guys, we just read out the pretext. अब इस pretext को पढ़ते ही पता चल गया कि ये passage जो है ये social studies पे based है, demographic inversion and all of that. तो ये थोड़ा सा उससे relate करता है, ठीक है, population factors और सारी चीजों से. तो अब हम लोग इसके बारे में, जब हमारे पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आ गई, तो अब हम पैसेज को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करेंगे, ठीक है. सो टिप नंबर 1, कीप दिस इन माइंड, रीड प्रीटेक्स्ट फर्स्ट. नेक्स्ट टिप नंबर 2, रीड क्वेश्चंस बिफोर द पैसेज. अब ये सबको बड़ी सरप्राइजिंग चीज लगती है कि क्वेश्चंस हम पहले क्यों रीड करते हैं पैसेज से पहले. यूजुअली हमेशा पैसेज को कहा जाता है कि रीड करना है, थॉरली रीड करना है, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाना है. हम क्वेश्चंस पहले इसलिए पढ़ते हैं पैसेज से क्योंकि हम उनको, ऑब्वियसली हम एक एक ऑप्शन, एक एक चीज को बहुत गौर से पढ़ के इतना ज्यादा टाइम क्वेश्चंस पे नहीं लगाएंगे, लेकिन एक क्विक ओवरव्यू, एक क्विक जो है ना, उनको स्किम थ्रू पहले जरूर कर लेना चाहिए. इससे पहले कि आप पैसेज जो है वो रीड करें, आपको चाहिए कि आप सबसे पहले जो है क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो. एक थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हमने क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन किस तरह की चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा कि इसमें जो है लाइन 7 फ्रॉम द पैसेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, जब आप वापस पैसेज पे जाओगे तो आपको पता होगा कि इस पैराग्राफ में उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, इस पैराग्राफ में उस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है पॉसिबली. तो ये सारी चीजें करने के लिए हम पहले हमेशा क्वेश्चंस को रीड करेंगे बिफोर द पैसेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल इन सेविंग टाइम ऑल्सो. और फिर सबसे ज्यादा फायदा इसका ये होता है कि जब आप वापस पैसेज पढ़ने जाते हो तो आप अननेसेसरी चीजों पे इतना फोकस नहीं करते हो. आप सिर्फ क्वेश्चंस में जो आंसर, क्योंकि हमें तो पूरे पैसेज को तो हमने अंडरस्टैंड करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, हमने सिर्फ उन चीजों पे फोकस करना है दैट आर बीइंग आस्क्ड बाय फ्रॉम अस in the questions. So keeping that in mind, just focus on the information of the questions that is required from the passage. तो वो चीज करने के लिए we have to go through the questions first, right? So ये आपने सबसे पहले कर लेना है, ठीक है? All right, let's move on and see what's tip number 3. Skim and summarize. I'm sure हम में से बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज के बहुत बड़े फैन होते हैं कि हम थोड़े थोड़े पॉइंटर्स बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं. This is actually a very good practice. It's a very helpful practice in the sense कि जब हम questions पढ़ के passage की तरफ जाएंगे तो हम जल्दी से mark कर लिया, अच्छा इस line में इस question का answer हो सकता है, ये lines में numbers बना लिए, छोटे छोटे words लिख लिए या highlight कर लिया. So this always helps in saving time. हमें इसके लिए पूरा passage बार बार go through नहीं करना पड़ेगा. So this is the reason why we always suggest कि आप पैसेज की जो है वो important pointers या summaries बना लो when you're going through the passage, ठीक है? So this is what tip 3 is all about. Tip number 4, don't do general questions first. जी, general questions को आपने पहले नहीं करना. क्यों नहीं करना? अब हम ये देखते हैं कि general questions actually होते किस बारे में. जैसे कि the question is number 23, the author's attitude toward demographic inversion is best described as one-off. इसके लिए हमें पूरा पैसेज जो है उसका हमें ओवरव्यू होना चाहिए, उसका हमें आइडिया होना चाहिए. जनरल क्वेश्चंस आपको पूरे पैसेज के बारे में ही यूजुअली आते हैं. ऑथर्स एटीट्यूड, ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज, थीम ऑफ द पैसेज, इन चीजों पे बेस्ड आपका जनरल क्वेश्चन होता है. इसके लिए आपको पैसेज की थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए.
तो इसीलिए कहते हैं कि पहले आप जनरल क्वेश्चंस को मत करें, आप पहले बाकी सारे क्वेश्चंस कर लें, जैसे कि लाइन स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो गए और इस तरह के क्वेश्चंस आप पहले कर लें, फिर आप जनरल क्वेश्चंस पे आए, तो तब एरर का चांस भी मिनिमम हो जाता है, क्योंकि तब तक आपको पैसेज का काफी आइडिया हो जाता है, क्योंकि आप पहली क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन जो है वो ढूंढ चुके होते हो पैसेज से, तो पैसेज की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बेहतर से बेहतर हो जाती है. Which is why doing such questions that ask you about the theme, the tone of the author, इस तरह के questions में आप general questions जो ये होते हैं इस पे based, उनको आप सबसे end पे करो. That is always a helpful idea. ठीक है? So we should always do general questions in the end. That's the best way to go about it. Okay. अब ये क्वेश्चन भी एक जनरल क्वेश्चन है. द मेन पर्पस ऑफ बोथ पैसेजेस इज टू, बिल्कुल. अब ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पहले दोनों पैसेजेस का काफी आइडिया होना चाहिए कि मेन पर्पस क्या है. तो वो आइडिया आपको तब होगा जब आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर लोगे, तो आपको काफी आइडिया तब तक पैसेज की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट. ओके जी, नेक्स्ट टिप इज अटेम्प्ट लाइन स्पेसिफिक क्वेश्चंस फर्स्ट. बिल्कुल जरूरी बात कि go back to specified lines. जैसे कि क्वेश्चन है, the phrase liquid gold sentence 9 of paragraph 4 most directly suggests that. अब इसके लिए आप जल्दी से सेंटेंस नंबर 9 पे जाओगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे. तो आपने लाइन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को पहले इसलिए करना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा कम टाइम लेते हैं. तो इनको अगर आप लोग पहले कर लोगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को जरा बाद में करोगे, तो इस तरह आपकी टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगी. आपने कम टाइम में ये क्वेश्चंस कर लिए, फिर आपके पास जो टाइम बच गया उसमें आप मुश्किल वाले चैलेंजिंग क्वेश्चंस कर सकते हो. So always keep this in mind that doing the line specific questions first in the reading section of SAT English is a very, very good helpful practice. ठीक है? All right. Moving on, tip number 6. Read 2 to 3 lines above and below. ये हम कब करते हैं? For line specific questions, make sure you read 2 to 3 lines above and below the specified lines too. बिल्कुल. अब यहाँ पर उन्होंने हमसे पिछले सवाल में पूछा हुआ है, the phrase liquid gold most directly suggests that. और यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये वर्ड वो गिवन है, liquid gold. ठीक हो गया? अब इस वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इससे पहले वाली कुछ लाइंस, द प्रीसीडिंग लाइंस, और इसके बाद वाली लाइंस जरूर रीड कर लेनी चाहिए, सो दैट हमें इसका मीनिंग और ज्यादा क्लियर हो जाए. ओके, Dawood Ahmed is asking what was tip number 1. Dawood, tip number 1 was to read pretext first. Okay, all right. So ये हमें आइडिया इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि किसी वर्ड का मीनिंग क्या है, इसीलिए हमें हमेशा कुछ लाइंस पहले की ऊपर की रीड कर ली और कुछ बाद की, उससे हम गलती से बच जाते हैं, तो हमें ये जरूर कर लेना चाहिए. Okay, what was tip number 5? Tip number 5 was to attempt line specific questions first. ठीक है? All right. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ. टिप नंबर 7. Have evidence for your answer. Now this is also something very important. हमारे पास पैसेज में हर क्वेश्चन का आंसर सामने मौजूद नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली हम सैट का पैसेज करें, हम ग्रेड 5-6 का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो कर नहीं रहे होते. तो इसीलिए हमें हर चीज को समझने के लिए हमारे पास रीजन होना चाहिए. We might be asked to look for information that is not given in the passage directly, but is implicitly hidden somewhere in the passage. उसको अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, which is why I said कि रीडिंग बहुत केयरफुली और अटेंटिवली करनी है. So passage को, it can be any sentence in the passage, explicit or implicit. You should read it between the lines. You should read it with a lot of attention. You should be able to justify your choice. Reason आपको जरूर देना चाहिए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों है, मतलब इसका लॉजिक क्या है, ये आपके माइंड में होना चाहिए. So always have evidence to back up your answer. Make sure that you are able to have a reason to select one of the options. ठीक है? Okay. Number 8. Use process of elimination if clueless. बहुत जरूरी बात कि अगर आपको लगता है कि आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं जो ठीक हैं और इनमें से कुछ ऑप्शंस जो हैं वो सही हो सकती हैं, तो आप वो ऑप्शंस जो हैं जो आपको बिल्कुल सही नहीं लग रही, जो आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, आप उनको क्रॉस आउट करते जाओ. और अगर 2 ऑप्शंस जो हैं वो बहुत सही लग रही हो, तो उसमें से भी वो ऑप्शन क्रॉस आउट करो जो कि आपको लग रहा हो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में शायद सही से अप्लाई नहीं हो रही.
So this is what we need to do. Okay, somebody raised their hand. Javeria Zahir. Javeria, you want to say something? All right, so Javeria, you can even type in the chat box if you like to. So process of elimination से once again हमारा time बच जाता है. हमें मुश्किल सवाल को देखते ही रहना तो नहीं है ना SAT में, तो हम wrong options को cross कर दें. So this is always the helpful way to go about a tricky question. All right, tip number 9. Dual passages, read one at a time. In the beginning, I told you that there will be paired passages in SAT reading. अब उन पैसेजेस का ये तरीका नहीं है कि आपने थोड़ी सी लाइंस पैसेज 1 की पढ़ी, थोड़ी सी पैसेज 2 की पढ़ी, फिर वापस पैसेज 1 पे गए, फिर 2 पे आए, फिर 1 पे गए. ये चीज नहीं करनी. दोनों पैसेजेस को 1 at a time रीड करना है, यानी एक पैसेज रीड किया फिर उसके बाद दूसरा. 2 out of the 6 passages will be paired passages, usually 40 to 50 lines each, followed by 10 to 12 questions. Comparison and contrast. Understand the similarities and differences according to the requirement of the questions. Now this is also very important कि जो है आप usually जो paired passages होते हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है या उनका जो डिस्कशन होती है वो मोर और लेस सेम ही बात पे हो रही होती है, लेकिन हमें उनमें से उनके डिफरेंसेस भी बताने पड़ सकते हैं इन द क्वेश्चंस. हमें उनमें से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ सकती है जिससे कोई क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाए, या वो कंपेयर कर रहे हो, सिमिलैरिटीज कंपेयर कर रहे हो. उस सारी चीज में make sure that you are reading the passages 1 at a time and you are not going off track from the question. So keep this in mind, right? Okay, next we have predict before reading options. ये तो बहुत ही ज्यादा होता है कि आप try to figure out the correct answer before you even read the choices, then select the answer closer to your predicted answer. जी, so आपको हमेशा जो है करेक्ट आंसर जो है उसको पहले फिगर आउट करने की कोशिश करो. यूजुअली कुछ क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं, once you read them you're able to have the ability of having the answer in the mind. फिर जब आप ऑप्शंस रीड करते हो आपको रियलाइज होता है हाँ ये तो मेरे उस जो मेरे माइंड में आंसर है उससे मैच करती है. So इस तरह से things become easier and questions like these do not take long if you follow these tips and strategies. Difficult questions will stay difficult, but easier questions को tackle करने में और उन पे कम time spend करने में ये भी एक बहुत huge achievement होती है कि आप उनको सही तरीके से और अच्छे time में manage कर लो. Okay, so this was all about the tips. Now summing up the tips, I would want somebody to quickly read out the tips. Okay, Ahmed Hussain, can you please read out the tips once again for us to? Yes ma'am. Ji. Tip number one, can you hear me ma'am? Yes. Tip number 1, read pre-text, go straight to the questions. Number 3, make reading summaries. Number 4, do not attempt general question first. Number 5, attempt the line specific question first. Number 6, read 2 to 3 lines above and below the specific lines. Number 7, always have evidence to back up your answer. Number 8, use process of elimination. Number 9, dual passages read once at a time. Number 10, predict answer before reading answer options. Yes, thank you very much, Ahmed. So this was all about the tips. Up, it's time that we start applying the tips and we see how they are going to prove to be helpful. ठीक है? We will be doing some examples from the book जो कि हमारे पास already मौजूद भी हैं. आप लोगों के पास I'm sure उनकी books जो हैं आपके पास मौजूद हैं, but हम screen पे in any case I will be sharing the book with you. Let me just quickly share my screen so that you guys could view the book. G. So here is the book and we would be doing page 11 to 11 onwards so that we understand the questions in the book and we try to make sure कि हमें सब समझ में आ गई है. ठीक है? So this is the passage 1 that we are going to read. ये paired passages हैं by the way. So can I have Muhammad Usman, can you please read the what are we going to do first?
अब मुझे सब पहले ये पता है हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैसेजेस रीड करेंगे। जी मैम। बिल्कुल नहीं, हम पैसेजेस पहले नहीं रीड करेंगे, हम सबसे पहले मैम, कुछ और रीड, पहले क्वेश्चन। we will read the Pretext. question. Yes, we will. Very good. We will be reading the pretext first, guys, because pretext jo hai, I'm also going through the chat box to see how well you guys have responded, and I can see ke Ali ne bhi kaha hai ki pretext. Yes, so we will be reading the pretext. Ali, can you read the pretext of this passage that is in front of you? Hello. Ji, passage 1. Passage 1 is Hmm. Passage 1 is adapted from Susan Miller's A Different Kind of Smart 2030 by Science News. Passage 2 is adapted from Behind Heinrich Mind of Raven Investigation and Adventures with Wolf Birds 2007 by Bernd Heinrich. Good. So these two passages, they are linked up. एक का टाइटल डिफरेंट है, दूसरे का टाइटल डिफरेंट है, और ये जो है ये पेयर्ड पैसेजेस के तौर पे हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस। अब मैं सारे क्वेश्चंस नहीं रीड करूंगी, मगर जब आपके पास रीडिंग सेक्शन आएगा तो आप सारे क्वेश्चंस रीड करके उनको अंडरस्टैंड करके उनके आंसर्स जो है वो ढूंढने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो नंबर 1, let's read the questions quickly, ठीक है। Yes, so first question says within passage 1 the main purpose of the first two paragraphs is to, so अब हम लोग वापस पैराग्राफ्स पे भी जा सकते हैं, but I suggest कि हम इसके लिए पहले questions को जल्दी से go through कर ले so that we have an idea about the questions, ठीक है। So next we have question number 2. According to the experiment described in passage 2, whether the author's Revens continued to show interest in a formerly new object was dictated primarily by whether that object was. Okay, so this is question number 2. अब मैं थोड़ा टाइम लगा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने जल्दी जल्दी इनको स्किम थ्रू करना है, ठीक है। Number 3, the crows in passage 1 and the ravens in passage 2 shared which trait? Number 4, one difference between the experiments described in the two passages is that unlike the researchers discussed in page 1, the author of passage 2, अच्छा, author of passage 2 क्या करता है ये भी हम देखेंगे। Then last we have this one. Is the main conclusion presented by the author of passage 2 consistent with Morgan's canon as described in passage 1? So now we will be looking at these questions. अब हमने questions को go through कर लिया, मैंने सारे नहीं देखे, लेकिन I'm sure आप लोग जब read करोगे तो आप लोग सारे questions देखोगे, ठीक है। So let's begin with question number 1 and see what is it asking us to do. और आप लोग जो है अब questions तो हम करेंगे ही, आप सबसे पहले passage read कर लो। I would like you all to start reading from page 11 to 12 of your books and try to understand what the passage is all about. When I will see कि time हो गया और जब लोग कहना शुरू कर देंगे कि I'm done, so you will just simply type in the chat box and say done, बस, ठीक है। So let's start, guys. Start reading passage number 1. It's page 11 of your books. I hope everyone is going to find this pretty easy. ये passages बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. In fact, interesting है काफी. So let's just read and find out.
And once you're done, please type in the chat box that you guys have finished. Okay, guys, one last minute and then we start. This was an interesting passage, वैसे. Okay. I think that's about it. Few more seconds and then we stop and start discussing the questions. All right, guys, it's almost time. Let's start with the discussion of the questions. उससे हमें और भी idea हो जाएगा passage का. वैसे भी हम passage को जल्दी से भी read कर सकते हैं क्योंकि in any case हमें questions के context में ही passage को समझना है, ठीक है? So question number 1 within passage 1. Let's start with question number 1. Within passage 1, the main purpose of the first two paragraphs, line 1 to 8 is to. अब ये जो है ये general question नहीं है. It is just asking you about the first two paragraphs and their purpose, right? So अभी हम लोग इसको देखते हैं कि ये question जो है हमसे क्या कह रहे हैं. हम option से पहले हम पहले paragraphs को read कर लेते हैं. Let me just quickly read the first two paragraphs. Main purpose हम उसको पढ़ेंगे तो हमें idea थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा. Okay, in 1894, a British psychologist, Lloyd Morgan, published what's called Morgan's canon. The principle that suggests human-like behavior processes still behind an animal's behavior should be rejected if a simpler explanation will do. Yes, he rejected the idea suggestions of human-like mental processes behind an animal's behavior. ये बिल्कुल reject कर दिया जाए कि एक animal जो है वो अगर bark करता है या अगर वो कोई इस तरह की चीज करता है तो वो जो है it's supposed to be considered as a human quality. He said it shouldn't be considered as a human quality because animals do not have human like qualities. Okay, still people seem to maintain certain expectations, especially when it comes to birds and mammals. We somehow want to prove they are as smart as people. Zoologist Sarah Shuttleworth says, we want a bird that masters a waxing problem to employing human lifestyle, human style insight. अच्छा जी, हमारे पास ये दोनों passages हो गए. अब हम वापस option की तरफ चलते हैं. Question number 1. So options are, option number 1 is, offer historical background in order to question the uniqueness of two researchers' findings. Yes, now this is a question, the option that's saying your historical background. अच्छा, first paragraph में तो there is some evidence की historical background की बात हो रही है. In 1894, it says in 1894, British psychologist Lloyd Morgan, ये तो paragraph 1 में बात हो रही है, तो थोड़ा सा historical background तो है. लेकिन question is asking
the main purpose of the first two paragraphs. तो first paragraph में तो there is historical evidence, but second paragraph में there is no historical evidence of researchers' findings and blah blah blah. So this is going to be the wrong answer. इसको मैं wrong mark कर देती हूँ. This cannot be an answer because historical background सिर्फ एक paragraph में उसकी बात हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही, right? Okay, then option B. Offer interpretative context in order to frame the discussion of an experiment and its results. आपने passage read किया, आपने देखा होगा कि researchers जो हैं they are trying to investigate the behavior of these animals. First passage में भी, second passage में भी. So interpretative. Okay, I read your message, Ahmed Hussain. I read your message. Okay. Offer interpretative context यानी कि कोई interpretation कर देना और फिर उसके बारे में एक experiment conduct करके उसके results को discuss करना, इस चीज की evidence तो हमारे पास इस passage में है. Interpretation तो है जो कि लोगों की है कि humans human like behavior animals में होता है. Okay, so welcome. So we will be saying कि ये थोड़ा सा it makes sense because ये दोनों paragraphs में हो रहा है. First paragraph में भी there is interpretative context and second में भी एक interpretation है, ठीक है? Number C, introduce a scientific principle in order to show how an experiment's outcomes validated that principle. Yes, अब कोई scientific principle show करके तो ठीक है. फर्स्ट पैराग्राफ में साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात हो रही है और सेकंड पैराग्राफ में लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है. फर्स्ट पैराग्राफ में तो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड मॉर्गन्स कैनन, राइट? दे से दैट द ह्यूमन लाइक क्वालिटीज आर नॉट देयर इन द एनिमल्स, बट सेकंड पैराग्राफ में तो दे आर जस्ट मेंशनिंग के लोगों को अभी भी लगता है, स्टिल पीपल बिलीव दैट animals have human like qualities. If you read the second paragraph you will see कि अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाके सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं, okay, so it says yes, it says still people seem to maintain certain expectations. यानी कि इसमें मॉर्गन कैनन की बात को जो है उसके अगेंस्ट ही जाया जा रहा है, सिर्फ लोगों की एक जनरल परसेप्शन बताई गई है. So ये आंसर जो है वो उस केस में it does not make sense if we say कि one's answer could be talking about a scientific principle in order to show how an experiments outcomes validated that principle. So इसकी कोई evidence second paragraph में नहीं है. Then option D, present seemingly contradictory stances in order to show how they can be reconciled empirically. अच्छा, अब हम दोनों paragraphs जब read करते हैं तो हमारे पास हम देखते हैं कि first paragraph में Morgan's canon is being stated. Canon is a belief. It's basically an idea. It's something that you believe in, a general law or rule made by something that is being judged. ठीक है? तो contradiction जो है वो first और second paragraph में बिल्कुल नहीं है. Second paragraph को बड़ा light note पे start किया गया. Still people believe. यानी कोई बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इन पूरे दो पैराग्राफ्स में, या एक दूसरे के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट पास नहीं की गई. सो इन प्रेजेंट सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंसेस इन ऑर्डर टू शो हाउ दे कैन बी रिकंसाइल्ड एम्पिरिकली. एम्पिरिकली मींस how they can be reconciled empirically, yani ki when you talk about empirical information, it's based on experience rather than theory, right? So this is why we will say कि option D भी जो है does not make sense because contradiction is not there. So the right answer that makes sense according to what the two paragraphs are talking about is going to be B. ये वो option है जो सारे words historical, scientific principle, contradictory, इन सब को wrong साबित करते हुए option B को सही मान रहे हैं. So this is the right answer. ठीक है? All right, so one question down. Let's see how many more we can do. All right. Next question. I would like somebody to read the next question. Can I have Sayyid Muhammad Abdullah? Can you read question number 2, please?
Sayed According to the, may I speak, ma'am? Yes, please go ahead. According to the experiment described in passage 2, whether the author's ravens continued to show interest in a formerly new object was dictated primarily by whether that object was A. edible, B. plentiful, C. conspicuous, D. natural. So guys, what do you think would be the right answer for this question? You can type in the chat box. Let's see how many of you come up with the right answer. Passage तो आपने read किया ही है. Okay, we have received one answer. Abdullah says it's A. ठीक है. अब्दुल्ला आंसर वैसे तो नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आप रीजन भी एक्सप्लेन करें कि आपको क्यों लगता है ए सही आंसर है. Okay, I have received Ajmal and Asifa and Abdullah's answer. I would like one of you to explain me, Javeria also. Okay, कोई आप में से explain करे. Raise your hands if you would like to explain the reason why it's the right answer. Okay, nobody's in the mood of explaining it. Javeria Zahir. Yes, Javeria. Thank you. Please go ahead. मैम क्योंकि पैसेज 2 में जो नैरेटर है उसने कहा था कि जब उसने कुछ इनएडिबल चीज रखी थी तो वो उन रेवंस के लिए बैकग्राउंड थिंग्स की तरह बन गई थी, जैसे घास वगैरह होती है. उनके लिए अटेंशन एडिबल थिंग्स थी. एग्जैक्टली. पैसेज में वैसे स्टार्ट इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं कि जिनका आंसर हमें पैसेज में बड़ी डायरेक्टली नजर आ जाए. सो जस्ट लाइक जवेरिया पॉइंटेड आउट कि पैसेज में इफ यू रीड द लास्ट फ्यू लाइंस इट सेज the main initial criterion for pecking or picking anything up was its novelty. Novelty का क्या मतलब होता है? Being original and natural. In subsequent trials, when the previously novel items were edible, they became preferred and inedible objects became background items. So that's why the reason being के जवेरिया जैसे state जवेरिया ने किया है कि edible हमारा सबसे appropriate answer है. Plentiful option जो है उसकी तो कहीं भी पूरे passage में evidence ही नहीं है कि it could be the right answer. Conspicuous का मतलब होता है easily seen, visible. इसकी भी कहीं कोई, इनफैक्ट इसको तो इन्होंने डिनाई किया है. ऊपर अगर हम लाइंस रीड करें इन द सेकंड लास्ट पैराग्राफ, इट सेज, सेकंड लास्ट पैराग्राफ की जो पैसेज 2 की लाइंस है, still others were such highly others were conspicuous and edible. Pebbles, glass chips, red winter berries. यानी कि ये सारे फूड्स वो थे जो नजर आ रहे थे, लेकिन इन्होंने उन बर्ड्स ने उनको they did not pick and choose, they did not peck on those objects. So this means that the right answer is definitely not conspicuous, it's not natural. The right answer is edible. Edible का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो खाई जा सके, and this was their preference कि जो चीज खाई जा सकती थी, they were more curious and they were pecking on that. Right? So question 2 का answer जो है, it's definitely going to be option A. Moving on to the next question. Question number 3. I would like I would like somebody to answer this question. Can we have Ajmal? Ajmal, can you please read this question number 3? And if you have an answer in your mind, you may explain it to us as well. Yes, Ajmal, go ahead. Question number 3. Okay, Ajmal, are you able to hear me? Okay, Ajmal जो है वो response नहीं दे रहे. So let's just do Mustafa Hussain. Mustafa, can you please read question 3? Yes, miss. The crows in passage 1 and the ravens in passage 2 shared which trait? Number A, they modified their behavior in response to changes in their environment. B, they formed a strong bond with the humans who were observing them. Number C, they manufactured useful tools for finding and assessing food. Number D, they mimicked the actions they saw performed around them. Thank you. So can you make a guess कि कौन सा आंसर सही होगा और रीजन भी देना होगा? मिस मेरे ख्याल से वही ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि दोनों जो बर्ड्स है उनके जब इन्वायरमेंट में थोड़ी सी तब्दीली लाई गई, फिर भी वो उन्होंने जो
जो उनके इन्वायरमेंट में जो चेंज था उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। जैसे बिल्कुल। मिसाल के तौर पर क्रोस का था, पहले उनको उसी तरह मीट रखा गया था उनके सामने, तो फिर उन्होंने उसी तरह ले लिया। जब बाद में उनके लिए थोड़ी सी रुकावट रखी गई तो उन्होंने उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया। इसी तरह वेरी रेवंस का भी यही है कि इनके इनके लिए दो पात रखे गए, एक उनके लिए फूड रखा गया और इनके लिए एक ग्लासेस मेबल्स वगैरह रखे गए। तो उन्होंने भी उस चेंज को अडॉप्ट कर लिया और सिर्फ फूड आइटम्स को ही उन्होंने ले लिया। एक्सीलेंट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और किसी और ने भी हैंड रेस किया था, इफ दे आल्सो वांट टू ऐड टू इट, प्लीज गो अहेड। ओके, आई थिंक नोबडी एल्स। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया है। आंसर इज ऑप्शन ए। दे मॉडिफाइड देयर बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। बिल्कुल, उन्होंने अपने बिहेवियर को चेंज किया अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दैट वाज गिवन टू देम इन बोथ द पैसेजेस। द क्रोज इन पैसेज 1 एंड द रेवंस इन पैसेज 2 शेयर्ड व्हिच ट्रेट। अच्छा, क्वेश्चन स्टेटमेंट को आपने हमेशा माइंड में रखना है। ये ना हो कि आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को ना देखो। ये बहुत ज्यादा होता है कि हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कर देते हैं और हम ऑप्शंस में लॉस्ट होके क्वेश्चन स्टेटमेंट को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। सो क्रोज इन पैसेज 1, रेवंस इन पैसेज 2 का कॉमन ट्रेट हमें देखना है। तो ए ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। एट टाइम्स ये भी होता है, जैसे फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव अ सॉलिड रीजन, but at times we do not have a reason to choose an option, but we do have a reason to cancel out all the other options. तो उससे भी हमें बड़ी हेल्प मिल जाती है टू कम अप विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड द करेक्ट आंसर। अब जैसे ऑप्शन बी है, दे फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द ह्यूमंस हु वर ऑब्जर्विंग देम। In passage 2 there is no in passage 1 there is no evidence of forming a strong bond with the researchers. In fact, researchers passage 1 mein they were hidden because they didn't want to expose themselves, they didn't want to come to the forefront. उसके बाद पैसेज 2 में ये थोड़ा सा दिखाया है कि वो क्यूरियोसिटी थी और जहां जहां ह्यूमंस जिस चीज को टच कर रहे थे वो उस चीज को टच कर रहे थे, उस चीज को मिमिक कर रहे थे, उस चीज को कॉपी कर रहे थे, बट कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की एविडेंस नहीं है। देन ऑप्शन सी, दे मैन्युफैक्चर टूल्स, useful tools for finding and accessing food. अब passage 1 में तो there is evidence of the birds, the crows making tools, very very impressive tools, but passage 2 में तो tools का कोई mention नहीं है. They were just pecking on objects, right? So this is why दोनों crows और ravens में ये चीज common नहीं थी कि they were making tools. Then D, they mimicked the actions they saw performed around them. मिमिकिंग भी जो है वो फर्स्ट पैसेज में तो उसकी कोई एविडेंस नहीं है, बिकॉज कोई ऐसे ह्यूमन सामने आए ही नहीं थे. सेकंड वाले में यस थोड़ी मिमिकिंग थी, बट हमने तो देखना है कॉमन ट्रेट क्या है पैसेज 1 और पैसेज 2 में. सो दिस इज व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. और हमारे पास इसका रीजन भी बहुत अच्छे से मौजूद है कि ये बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो they do not make sense in the context of the passage. So that's about it, guys. Let's move to the next question. We have question number 4. जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि ये हमसे किस चीज की इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है. आई वुड लाइक somebody raise their hand. Would they like to read the question number 4? Aisha Ashraf. Yes, Aisha, please go ahead. Okay. One difference between the experiments described in the two passages is that unlike the researches discussed in passage 1, the author of passage 2, first option is presented the bird with a problem to solve. Second option is intentionally made the birds aware of his presence, and C option is consequently manipulated the bird's surrounding, and D option is tested the bird's tool using abilities. Okay. Can you think of an answer for this, Aisha? Yes, ma'am. I think so. B option is correct. B option is correct. Do you think? Do you know why it's the correct answer? Ma'am, I think so. It can give more information. मतलब made the birds aware in the presence. ये passage को read करने से मतलब कि लग रहा है कि शायद यही ठीक होगा.
ठीक है। अच्छा, मैं अभी आप लोगों के चैट बॉक्स में भी आंसर्स पढ़ रही हूँ। आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन के सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला ने और शाहजेब इकबाल ने भी एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। अगर आप चाहें तो आप माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर जो भी देना चाहता है, रीजन मुझे बताना, बेसिकली आपने जस्टिफाई करना है आंसर को। अब्दुल्ला, यस अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्लीज गो अहेड एंड एक्सप्लेन। मैम, इस वजह से इसका ऑप्शन बी बनता है कि ही इंटेंशनली मेड द बर्ड्स अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, क्योंकि पैसेज 2 में ये क्लियरली स्टेटेड है कि वो खुद रेवंस को वॉक के लिए लीड करता था, वो उन्हें खुद लेकर जाता था। ये एक्सपेरिमेंट की नेचर इस तरह थी। राइट, बिल्कुल सही। और कोई और किसी ने एक्सप्लेन करना है? Okay, we have 2 more participants. Javeria Zahir. Ji, Javeria, you want to say something? Sorry, we can't hear you, Javeria. Ma'am, can you hear me now? Yes, yes, थोड़ा सा और loud. मैम, पैसेज 1 में नरेटर ने कहा था कि जो रिसर्चर्स थे वो क्रोज के लिए रुकावट रखे, वो छुप गए थे, मतलब वो उनको अपनी Okay, so Javeria, we cannot listen to you very clearly. It's okay, कोई बात नहीं. आप अगर चाहो तो आप अपना चैट बॉक्स में भी आंसर टाइप करके बता सकती हो. So guys, thank you for your input. I can see that आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो. पैसेज को भी आप लोगों ने कम टाइम में रीड करके उसको अंडरस्टैंड किया. So मैं आप लोगों को इसका आंसर, that's right, the answer is for question number 4, the answer is B. One difference between the experiments described in the 2 passages is that unlike the researchers discussed in passage 1, the author of passage 2 ने ऐसा क्या differently किया था researchers जो passage 1 के हैं उनसे, तो वो difference हमने जो है passages को read करके experiments में जो उन्होंने difference क्या था उन दोनों researchers में. So option A presented the birds with a problem to solve. अब ये तो दोनों passages में they had a problem. First passage में भी they had to take out those pieces of meat, find out food. Passage 2 में भी exactly एक problem scenario create किया गया था. So this could not be the right answer. तो इसको तो मैं wrong mark कर दूंगी, ठीक है? Then option B, intentionally made the birds aware of his presence. Of course, ये तो हुआ था क्योंकि second passage में वो सामने मौजूद था researcher और वो actually he was touching all the objects, and the objects that he was touching, the birds were also following him and they were also touching out of curiosity. वो भी उन्हीं objects को they were pecking them with their beaks and their mouths, ठीक है? Then C, consciously manipulated the birds' surroundings. मैनिपुलेशन जो है वो जो है बेसिकली चॉइस सी जो है वो कॉन्शियसली मैनिपुलेशन जो है पैसेज 1 और पैसेज 2 के जो दोनों रिसर्चर्स हैं दोनों ने कॉन्शियसली बर्ड सराउंडिंग्स को मैनिपुलेट किया था. एक ने लॉग जो है उसके पीछे एक प्लांट छुपाया था एंड देन द ऑथर ऑफ पैसेज 2 ही पुट अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स इन द path of those birds, the ravens, right? So इसलिए ये दोनों में apply हो रही है. Then D, tested the birds tool using abilities. ये चीज जो है ये सिर्फ जो है पैसेज 1 में हुई हुई है. हमसे पूछ रहा है कि ऑथर ने पैसेज 2 में ऐसा क्या किया था. क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो पैसेज 2 की तरफ पॉइंट आउट कर रही है. सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए, सी और डी गलत है और बी जो है वो हमारा सबसे सही और सबसे अप्रोप्रिएट चॉइस होगी, ठीक है? सो अब हमारे पास रीजन भी आ गया है, जस्टिफिकेशन भी आ गई है, बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है ये पता चल गया. सो नेचुरली बी इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब हम जल्दी से. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 आई वुड रियली वांट, अगर कोई विलिंग हो पढ़ के उसको एक्सप्लेन करने के लिए, यू कैन रेज योर हैंड्स फॉर दिस ऑल्सो. Okay, nobody is raising their hands. I'm assuming मैं ही read कर लेती हूँ. अगर किसी के पास आंसर हो तो वो बता सकते हैं, ठीक है? So question number 5 is the main conclusion presented by the author of passage 2 consistent with Morgan's canon as described in passage 1? G, passage 1 के जो conclusion draw किया गया है, main conclusion presented by the author of passage 2 वो उसके साथ consistent है या नहीं है?
अब इसका आंसर मुझे कौन देगा रीजन के साथ? यस अब्दुल्ला। मैम इसका आंसर डी है कि वो जो कंक्लूजन था ऑथर ऑफ द पैसेज 2 ने जो निकाला था वो मॉर्गन्स कैनन से बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। इसकी वजह ये है कि पैसेज 1 में मॉर्गन्स कैनन में ये क्लियरली स्टेट उन्होंने किया था कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि ह्यूमंस के न्यूरोटिक प्रोसेसेस के जरिए होता है वो बर्ड्स में नहीं होना चाहिए। ये मॉर्गन कैनन्स का असूल था। जबकि ऑथर ऑफ द पैसेज 2 का सारा एक्सपेरिमेंट और उसका कंक्लूजन इस बात पर मबनी था कि बर्ड्स भी इंसानों ही की तरह जो है ना वो क्यूरियोसिटी रखते हैं। इसके अलावा बर्ड्स के अंदर भी अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होने का अंसर पाया जाता है और वो मुख्तलिफ चीज़ों की नेचर को चेक भी करते हैं जैसे इंसान भी करते हैं, वो एडिबल हैं या अनएडिबल हैं या न्यू हैं या ओल्ड हैं जो पहले से हमने देखी थी। वेरी गुड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने बहुत क्लियरली बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब्दुल्ला आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे वर्ड्स आपने यूज किए। सो इट्स वेरी क्लियर व्हाई ऑप्शन all the other options are wrong and option D is the right answer. No, because the conclusion implies that a human-like quality motivates the raven's behavior. तो मॉर्गन कैनन की जो मॉर्गन का जो कैनन था, जो उसकी बिलीफ थी, जो उसकी थ्योरी थी, उसको तो उसने रिजेक्ट कर दिया, राइट? सो इसीलिए मेन कंक्लूजन जो ऑथर ऑफ पैसेज 2 ने डिड्यूस किया है, जो कंक्लूड किया है, वो पैसेज 1 के कैनन से, मॉर्गन के कैनन से कंसिस्टेंट नहीं है। सो नो ऑप्शन जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं सो दैट वी हैव अ रीजन कि ये क्यों सही नहीं है। A, yes, because the conclusion proposes that the raven's behavior is a product of environmental factors. इसकी तो कोई एविडेंस नहीं है, environmental factors की बिल्कुल कोई एविडेंस दोनों पैसेजेस में नहीं है कि environmental factors का influence है। Option B, yes, because the conclusion offers a satisfyingly simple explanation of the raven's behavior. बिल्कुल wrong. Yes वाली options तो हम वैसे ही क्रॉस आउट कर देंगे क्योंकि पैसेज 2 का conclusion पैसेज 1 के मॉर्गन कैनन से बिल्कुल डिफरेंट है। No. ऑप्शन सी जो है उसमें है नो, बिकॉज द कंक्लूजन सजेस्ट दैट द ravens exhibit complex behavior patterns. इसकी कोई कंक्लूजन ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं हमने ड्रॉ किया 5C ऑप्शन के अकॉर्डिंगली कि जो है उनका कंक्लूजन जो है वो ये तो है कि कैनन के साथ जो है वो पैसेज 2 जो है वो अग्री नहीं कर रहा, बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स की कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं मिलती है, ठीक है? Instead, the canon is merely rejecting the human-like mental processes should quickly or easily be attributed for animals, ठीक है? So this is why C could not be the right answer, and पैसेज 1 में तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, पैसेज 2 में नहीं होता है, ठीक है? सो नो की ऑप्शन तो हम वैसे ही सिलेक्ट करेंगे। और फिर जो सबसे ज्यादा सही बात जो अब्दुल्ला ने कही कि ह्यूमन लाइक क्वालिटी जो है, जो कि कैनन के अकॉर्डिंगली नहीं होती एनिमल्स में, कंक्लूजन के अकॉर्डिंगली उसने ये ड्रॉ किया कि ह्यूमंस की तरह एनिमल्स में भी, बर्ड्स में भी क्यूरियोसिटी होती है, और वो हमने वेरी क्लियरली वी फाउंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ पैसेज 2, राइट गाइस? सो नाउ let's move on to the next question, और फिर उसके बाद हम लोग क्लास अपनी वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? Let me just quickly clear this. Yes, okay. Question number 6. Okay, I would like one of you to read question number 6 very quickly. Please raise your hands who would like to do question 6 and explain it as well. एक second. Guys, please raise your hands if you are willing to. Okay, question 6 तो है ही नहीं, हमने सारे questions कर लिए हैं, जबरदस्त. So that's about it. If you guys have any questions, please go ahead and ask me. और कुछ डिस्कस करना है तो वो भी कर सकते हो, because हम 4 minutes अभी भी हमारे पास है. Yes, Daud. अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। टीचर, जब हम ये रीडिंग के सेक्शन में जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारा जो एवरेज स्पीड है रीडिंग का वो कितना होना चाहिए? क्योंकि अगर हम स्लो रीड करते हैं तो हमें ज्यादा समझ आती है, लेकिन फिर उधर हमारे साथ टाइम नहीं होता,
और अगर हम तेज रीड करते तो फिर हम समझ नहीं पाते और क्वेश्चंस को। तो जो हमारी एवरेज जो स्पीड होनी चाहिए रीडिंग की वो कितनी होनी चाहिए, और हम कैसे अपने स्पीड को रीडिंग के वो तेज कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समझ भी पाए और जल्दी से जल्दी रीड भी कर सकें। Daud, when I was emphasizing on reading in the very beginning, I told you कि reading की speed obviously ये कोई vehicle तो है नहीं कि हमने उसकी एक speed average speed होनी चाहिए। आपने आपके पास देखो पैसेजेस जो हैं वो कभी आप लकी हो जाते हैं, कभी उसकी लैंग्वेज बहुत इजी होगी और क्वेश्चंस मुश्किल आ जाएंगे, कभी लैंग्वेज बहुत मुश्किल होगी क्वेश्चंस इजी आ जाएंगे पैसेज के। तो ये चीज आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस कितनी हुई हुई है। उसकी वजह से अगर आपने पहले से बहुत ज्यादा पास्ट पेपर्स की, सैम्पल पेपर्स की, प्रैक्टिस टेस्ट की बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हुआ है और फिर आपको इतना पढ़ के आइडिया हो जाता है, तो ये जो रीडिंग की स्पीड है ना, ये आप सिर्फ रीडिंग की प्रैक्टिस करके ही तेज कर सकते हो। आर्टिकल्स रीड करो, प्रैक्टिस पेपर्स करो, सबटाइटल्स रीड करो मूवीज के, उससे भी बहुत ज्यादा रीडिंग प्रैक्टिस तेज होती है क्योंकि सबटाइटल्स यूजुअली तेजी से गुजरते हैं, राइट? So these are some very simple tips that you could apply in your daily life and you could make good use of them, क्योंकि रीडिंग की स्पीड आपकी सिर्फ रीडिंग की प्रैक्टिस से ही। मैं आपको सिर्फ एक रूल बताऊंगी और वो ये रूल है कि आप रीडिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितना आप रीड एक चीज को करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, नेचुरली वो एबिलिटी आपके अंदर आती जाएगी और जब आप सैट को एक्चुअली अटेम्प्ट करोगे तो आपने वो पैसेज रीड करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप उसको देख के डरोगे नहीं बिकॉज आपने पहले इतना कुछ रीड किया हुआ होगा, आपके लिए वो एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो प्लीज मेक श्योर कि ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि स्पीड होनी चाहिए, स्पीड की बात नहीं है। जब आपने क्वेश्चंस रीड कर लिए तो आपको जो टिप्स हैं, वो टिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप क्या थी कि आप समरीज बना लें, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जॉट डाउन कर लें जो कि क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन 2 का अगर आंसर जो है वो पैराग्राफ 2 में उसका आंसर है तो पैराग्राफ 2 में से आप वो पर्टिकुलर पोर्शन हाईलाइट कर लो। यही तरीका है, वरना आपने इस पैसेज को समझने में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। रीडिंग पैसेजेस को अगर आप समझने के लिए बैठ गए, हर एक डिफिकल्ट वर्ड को समझने के लिए उसको आपने एक सेंटेंस को 4-4 बार पढ़ा, फिर क्वेश्चंस तो नहीं हो सकेंगे। तो बस आपने सिर्फ उस इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है जिधर से क्वेश्चन आया हुआ है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। और लाइक आई सेड, रीडिंग की प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी चीजों को हैबिचुअल कर लो अपनी रीडिंग एबिलिटीज को बेहतर करने के लिए। So this is the way to go about it. ठीक है? Any other questions? Last minute left. And I can see Javeria has also posted her answer for the question. Thank you, Javeria. I really like the explanation that you have shared. And anything else? I think that's about it. We can wrap up the class. Thank you so much everyone. It was a great experience. इंशाल्लाह हम लोग और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की और ज्यादा चीजें सीखेंगे और आप लोगों के क्वेश्चंस हम एड्रेस करेंगे। जी, 2 participants raised hands. ये कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं? मैम जो इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल्स के लेक्चर हैं वो कब होंगे? इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल्स की आपके पास टाइम टेबल है? इंग्लिश का तो अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। अजमल, लेट मी जस्ट चेक, मैं इंग्लिश की आपको बता देती हूँ। आपकी कल है नेक्स्ट क्लास, 4 o'clock की है, ठीक है? सॉफ्ट स्किल्स की यू विल हैव टू चेक। आई हैव नो आइडिया अबाउट सॉफ्ट स्किल्स की। मैम आज मैथ और सॉफ्ट स्किल्स की नहीं हुई, बस इंग्लिश की हुई है। ठीक है, तो कल भी आपकी इंग्लिश की 4 o'clock क्लास है, ठीक है, जैसे आज हुई है, ठीक है ना? All right, thank you so much guys. क्लास हुई है? अच्छा, ठीक है। Thank you guys. Inshallah we will have the next class tomorrow. I'll see you then. Take care. Allah Hafiz. Have a nice day.